हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चौधरी सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहता हूँ। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज़ वेटेड एवरेज मेथड इन केस ऑफ मटेरियल इश्यूज। ठीक है, हम लोग लीफो और फीफो एक प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, चैप्टर है मटेरियल्स। हम लोग मटेरियल का इशू का जो वैल्यूएशन है वो सीख रहे हैं और हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड में किस तरीके से वेटेड एवरेज का यूज़ करके मटेरियल के जो इश्यूज हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके वैल्यूज़ को निकाला जाता है और क्लोजिंग स्टॉक और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेश करूँगा ताकि मैं इस पूरे सिचुएशन को अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ये क्वेश्चन है सीए इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट लेवल का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक है, दैट इज़ इन ग्रुप 2, उसका चैप्टर 2 पेज नंबर 68 में इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप मैं डेफिनेटली क्वेश्चन को अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, वीडियो में, ताकि आप लोगों को समझने में, पूरे सिचुएशन को समझने में मदद हो। तो मैं अब क्वेश्चन को रीड करके आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 में लिखा हुआ है, एम्ब्रियोज इंडिया लिमिटेड इज रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप company back in the year 2019. It is engaged in creating embedded products and Internet of Things solutions for the industrial market. It is focused on innovation, design, research and development of products and services. One of its embedded products is Logmax, a system of module SOM, the carrier board on for industrial use. It is a small, flexible and embedded computer designed as per industry specifications. It is in the beginning of the month of 2020, September 2022, company entered into a job agreement of providing 4,800 Logmax to NIT Mandi. The following details with respect to receipts, receipts, returns of store department, handling microcomputer, a component used in the designated assembling process, have been extracted for the month of September 2022. September 1, opening stock 6,000 units at the rate of 6,285 per unit. September 8, issued 4,875 units to Mechanical Division Wide Material Requisition Number MEC 009/22. September 9, received 17,500 units at the rate of 276 per unit Wide Purchase Order Number 159/22. Issued to 12,000 units to Technical Division Wide Material Requisition Number TEC 00012/22. September 12, returned to store 2,375 units by Technical Division against Material Requisition material requisition number TEC 012/22. Received September 15th, received 9,000 units at the rate of 288 per unit Wide Purchase Order number 160/2222. September 17, returned to supplier 700 units out of quantity received Wide Purchase Order number 160/22. September 20, issued 9,500 units to Technical Division Wide Material Requisition number TEC 165/22. On 25th September 2022, the stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown due to certain emergency and immediately left the job same day. Later, he also switched his phone off. As the company has a tendency of stock taking every month of the month to every end of the month to check and report for the loss due to rusting of the components, the new stock manager on 30th September 2022 found that 900 units of microcontrollers were missing
which was apparently misappropriated by the former stock manager. He further reported loss of 300 units due to the rusting of the components. From the above information, you are required to prepare the stock ledger account using weighted average method for valuing the issues. हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कंपनी है वो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है और होता क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ उसका जो स्टॉक का मैनेजर है वो कुछ सामान लेकर के 900 यूनिट्स लेकर के भाग जाता है। ये 900 यूनिट्स जो स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट हो रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का भी यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, ये जो सामान है इट इज़ प्रोन टू रस्टिंग, इसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। तो इट इज़ जो जंग लग गया है 300 यूनिट सामान पे, उसको हम लोग एक नॉर्मल लॉस माने हैं, पर नॉर्मल लॉस की तरह ही उसका ट्रीटमेंट किए हैं। जो सामान चोरी हो गया है उसको अब नॉर्मल लॉस मान करके अब नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट किया गया है, और 300 सामान जो है वो उस पर जंग लग गया है, उसको नेचुरल कॉज माना जा रहा है और नॉर्मल लॉस माना जा रहा है, और उसका अकॉर्डिंगली उसका हम लोग कैलकुलेशंस किए हैं। अब मैं क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये आपको दिखाने वाला हूँ, और बगल में मैं वर्किंग नोट भी रखा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कैलकुलेशंस वगैरह। सितंबर 1 को कंपनी के पास 6000 यूनिट्स था, 285 के रेट से था, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना था, उसके पास बैलेंस था 17,10,000। आप सिंपली क्या करिए, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 285 करिए, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करिए, आपका अमाउंट आ जाएगा 17,10,000 रुपया का सामान उसके पास पहले से था। अब 8 सितंबर को क्या होता है, कंपनी इशू करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, 4875 यूनिट्स, ठीक है। और देखिए रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट रेट का आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके पास बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का जो रेट होता है उसी को आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेटेड एवरेज मेथड में आप उसको यूज कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा होता है वेटेड एवरेज मेथड का। आप ओपनिंग बैलेंस का रेट जो है, जस्ट ओपनिंग बैलेंस के जस्ट बाद अगर कुछ इशू होता है तो आप ओपनिंग बैलेंस का रेट को आसानी से यूज कर लो। 285 के रेट से था तो आप यहाँ पे भी 285 लिख सकते हो। अब क्या है, अब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 4875 इंटू 285 दैट इज इक्वल टू 13,89,375। इतना अमाउंट का सामान इशू हुआ है। अब देखिए 6000 यूनिट पहले से आपके पास बैलेंस था, अब उसमें से 4875 यूनिट्स आपने यूज कर लिया, तो 6000 में से 4875 यूज करने के बाद आपके पास कितना बचा स्टॉक में, 1125 यूनिट्स। रेट एक ही है, डिफरेंट रेट है नहीं, 285 को ही यूज करिए। 1125 इंटू 285 दैट इज इक्वल टू 3,20,625 रुपीस का माल आपके पास है एज ऑन 8 सितंबर। अब 9 सितंबर को क्या हो रहा है, 17,500 यूनिट्स आप परचेज कर ले रहे हो, तो इसको रिसीट्स वाले कॉलम में हम लोगों ने लिख दिया है। 17,500 यूनिट्स आपने उसको परचेज किया है 276 के रेट से, तो 17,500 इंटू 276 इज इक्वल टू 48,30,000 होता है। अब आप करो क्या, देखो इसके पहले 8 सितंबर को आपके पास बैलेंस था 1125 यूनिट्स, उसके साथ 17,500 यूनिट्स अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएगा 18,625 यूनिट्स। प्लस करना पड़ता है रिसीट्स वाले कॉलम का जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं और इशू को माइनस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 18,625 के साथ 1125 के साथ 17,500 को ऐड करने के बाद 18,625 यूनिट्स आ रहा है। अब इसका अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट वगैरह हम लोग निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे चेक करके देखिए, अमाउंट के साथ आप अमाउंट को जोड़ दो, ठीक है, देखो ध्यान दो, तो अमाउंट के साथ आप अमाउंट को जोड़ो, दोनों अमाउंट को आप ऐड करो। ओपनिंग बैलेंस वाला अमाउंट था आपका 3,20,625 और जो रिसीट वाला अमाउंट है उसको उसके साथ ऐड करो, तो दैट इज 48,30,000। दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो मेरा आ रहा है 51,50,625। 51,50,625 इज द टोटल अमाउंट। ये हो गया हम लोग के लिए टोटल अमाउंट, मतलब एज ऑन
9 सितंबर हमारे पास जो स्टॉक है उसका टोटल अमाउंट हो रहा है 51,50,625। अब देखो वेटेड एवरेज के केस में रेट का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी। टोटल अमाउंट 51,50,625 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा रेट को पता करने के लिए 18,625 से, 18,625 से 51,50,625 डिवाइडेड बाय 18,625 276.54 आना चाहिए। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, एक बार चेक कर लिए। हाँ 276.54 आ रहा है। तो 276 रुपीज 54 पैसा इज द रेट that is I am going to write in the rate column। रेट कॉलम में मैं 276.54 लिखने वाला हूं। एक एक यूनिट का रेट मेरा निकल रहा है, ठीक है 276.54। अब क्या करेंगे, अब इस तरीके से वेटेड एवरेज रेट को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद 10 सितंबर को 12,000 यूनिट इशू हो गया। 18,625 मेरे पास पहले से था 9 सितंबर को, उसमें से 12,000 यूज हो जाने के बाद मेरे पास बचेगा 6,625। मैं एक तो दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको। 18,600 मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग बैलेंस वाला क्वांटिटी से मैं रिसीट वाला क्वांटिटी को माइनस कर रहा हूँ। तो 18,625 माइनस 12,000 दैट इज इक्वल टू 6,625। 6,625 यूनिट्स मेरा कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वही रेट यूज करिए जो आपका इसके पहले वेटेड एवरेज रेट हम लोग कैलकुलेट किए, दैट इज 276.54। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6,625 into 276.54 दैट इज इक्वल टू 18,32,145। अब इसके बाद 12 सितंबर को क्या हो रहा है, 12 सितंबर को हम लोग परचेज कर ले रहे हैं 2,375 यूनिट्स at the rate of 276.54। 276.54 के रेट से ही हम लोग इसको परचेज कर रहे हैं। अब इन दोनों को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हम लोग का आ रहा है 6,56,783। दोस्तों ये जो 12 सितंबर को जो सामान का जो रेट हम लोग यूज कर रहे हैं 276.54, ये देखिए ये हम लोग इसके ओपनिंग बैलेंस वाला रेट ही हम लोग यूज किए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 12 सितंबर को एक्चुअली में हम लोग कुछ सामान परचेज नहीं कर रहे हैं। इसको रिसीट्स वाले कॉलम में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये जो सामान है 2375 वो रिटर्न आया था, वो माल लौट के आया था। कौन से वाले लॉट का माल लौट के आया था, प्रीवियस वाले ओपनिंग बैलेंस वाला जो सामान था वो सामान जो है वो रिटर्न आ रहा था। तो रिटर्न जब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो रेट आपको यूज करना है वो ओपनिंग बैलेंस वाला रेट ही आप लोग क्या करिएगा, यूज कर लीजिएगा। तो इसीलिए सेम टू सेम रेट हम लोग यूज किए 2,375 इंटू 276.54 दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6,56,783। अब आप देखिए 6,000 यूनिट, ये 9,000 यूनिट्स कैसे आया, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आपके पास ओपनिंग बैलेंस का क्वांटिटी था 6,625, रिटर्न आ गया आपका 2,375, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास कितने सामान आ गए, 9,000 यूनिट्स आपके पास सामान आ चुका है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 9,000 यूनिट्स हम लोगों ने शो किया। 276.54 सेम ही रेट यूज होगा बिकॉज कोई डिफरेंट रेट है नहीं हमारे पास। तो 9,000 into 276.54 that is equal to 24,88,928 आ रहा है। अब यहाँ पे फिर 9,000 यूनिट्स हम लोग एक्स्ट्रा परचेज किए, उसका रेट था 288, तो 9,000 into 288 15 सितंबर को हम लोगों का टोटल अमाउंट जो हम लोग परचेज किए हैं दैट इज 25,92,000। 9,000 सामान पहले से था, 9,000 और परचेज हुआ, 9,000 प्लस 9,000 टोटल हो गया 18,000। फिर से हम लोगों को सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अमाउंट के साथ अमाउंट को पहले प्लस करेंगे, तो अमाउंट के साथ अमाउंट को प्लस करिए, अमाउंट प्लस अमाउंट। तो इसके ओपनिंग बैलेंस में जो अमाउंट था दैट इज 24,88,928, उसके साथ आप प्लस करो 25,92,000,
तो आपका आई थिंक आएगा 50,80,928, 50,80,928। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 50,80,928, तो ये जो अमाउंट है इसका फिर अलग से हम लोगों को रेट निकालना होगा यूजिंग द फॉर्मूला टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हम लोगों को 50,80,928 को फिर हम लोगों को डिवाइड देना पड़ेगा 18,000 यूनिट से, तो हम लोगों का वेटेड एवरेज रेट हम लोगों का आ जाएगा 282.27। कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 282.27 इसको हम लोग यहाँ पे रेट वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ये वो वाला रेट है, ठीक है, ये रेट ये वाला रेट है 282.27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 18,000 इंटू 282.27, क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि ये सेम आ रहा है कि नहीं। 50,80,928 आना चाहिए, आई थिंक आ जाना चाहिए। कंफर्म कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो कैलकुलेशन वगैरह सही है। इसके बाद 700 यूनिट्स जो है हम लोगों ने 17 सितंबर को इशू किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का यहाँ पे जो एक बार 17 सितंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लिए। 17 सितंबर में बोल रहा है रिटर्न टू सप्लाई 700 यूनिट्स आउट ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड बाय परचेज ऑर्डर नंबर 160/22। तो 160/22 वाला जो ऑर्डर था उससे कुछ सामान जो है वो इशू हुआ है। तो 160/22, तो ये वाला ऑर्डर आई थिंक होगा 15 सितंबर को। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ये मैच कर रहा है, ऑर्डर नंबर जो है परचेज ऑर्डर नंबर 160/2022 ये मैच कर रहा है। तो बोलने का ये कोशिश कर रहा है कि ये जो सामान है 9,000 यूनिट्स जो हम लोगों ने परचेज किया था उसमें से 700 यूनिट्स जो है वो डिफेक्टिव निकल गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, सप्लायर को बोला कि भाई इसको हम लोग लौटाने वाले हैं, इसको तुम एडजस्ट कर लो। तो जब लौटाएंगे उसको यहाँ पे इसको इशू माना जाएगा, क्योंकि हम लोग सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो हम लोग सामान रिटर्न करेंगे तो वो भी इशू वाले कॉलम में हम लोग उसको शो करेंगे। तो 700 यूनिट्स 288, ये सेम टू सेम, ये सामान और ये सामान का रेट सेम टू सेम होगा, क्योंकि उसी लॉट से ये इशू हो रहा है, उसी लॉट से लौटा रहा है। तो 700 into 288 दैट इज इक्वल टू 2,01,600 हो रहा है। अब 18,000 यूनिट्स में से 700 यूनिट हमने वापस कर दिया, तो हमारे पास माइनस हो करके कितना बचेगा, 18,000 माइनस 700 दैट इज 17,300। अब हमारा यहाँ पे देखिए अगेन हम लोग को क्या करना होगा, 50 लाख, अब मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। 50,80,928 ओपनिंग बैलेंस वाले अमाउंट से 2,01,600 को मैं माइनस कर रहा हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। अमाउंट में से अमाउंट को यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50,80,928 में से 2,01,600 को माइनस करके यहाँ पे मेरा बैलेंस बचना चाहिए 48,79,328। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आया इसके बेसिस पे फिर वेटेड एवरेज रेट हम लोग निकालेंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, दैट इज 48,79,328 डिवाइडेड बाय 17,300 इज इक्वल टू आई थिंक आना चाहिए 282.04, ठीक है। तो कंफर्म्ड है, तो 282.04। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज रेट्स वगैरह निकाल करके हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। फिर 20 सितंबर को हमने इशू किया 9,500 यूनिट्स, यही रेट से, ठीक है, ऊपर ओपनिंग बैलेंस वाला जो रेट है उसको यूज किया जाएगा। 282.04 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 26,79,380। 17,300 में से 9,500 इशू हो गया। अब हमारे पास बचा 7,800 यूनिट। 282.704 ही रेट रहेगा ओपनिंग बैलेंस वाला रेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21,99,948। अब 900 यूनिट्स जो है वो हमारा चोरी हो गया, हमारा एक स्टाफ जो है वो चुरा के भाग गया, उसको भी इशू वाले कॉलम में ही आपको लिखना पड़ेगा। ये थेफ्ट है, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस ओपनिंग उसको इशू वाले कॉलम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और रेट आपको यूज करना होगा ओपनिंग बैलेंस वाला रेट 282.04।
तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका टोटल जो लॉस होगा वो हो जाएगा 2,53,836। 7,800 क्वांटिटी में से 900 यूनिट्स चोरी हो गया। अब हमारे पास बचेगा 6,900 यूनिट्स। सेम रेट यूज करेंगे 282.04। आंसर हम लोग का अमाउंट आएगा 19,46,112। अब इसके बाद 300 यूनिट हमारा ये रस्टिंग की वजह से लॉस हो गया था। रस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उसको हम लोग नॉर्मल लॉस मानते हैं। नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं होता है, कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, तो इसीलिए रेट वाला कॉलम में हम लोग हाइफन डाल देंगे। कुछ कैलकुलेशन इसका करने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रेट वाला कॉलम में हाइफन, तो अमाउंट वाले कॉलम में भी हम लोग हाइफन डाल देंगे। कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। 6,900 में से 300 यूनिट्स हम लोगों का रस्टिंग हो गया, तो अपने पास गुड यूनिट्स कितना बचा? अच्छे यूनिट्स 6,600 यूनिट्स अच्छे यूनिट्स बचे हैं। और 19 लाख, अब फिर से सेम फॉर्मूला लगाइए अमाउंट वाले कॉलम से। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये सेम का जीरो माइनस हो रहा है, तो बेसिकली ये सेम अमाउंट यहाँ पे रह जाएगा। ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस वाला ही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 19,46,112। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, सेम टू सेम अमाउंट। अब आपको रेट के लिए आपको क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला लगाना होगा वेटेड एवरेज रेट वाला, जो मैंने आपको सिखाया था। 19,46,112 डिवाइडेड बाय 6,600 यूनिट्स आपके पास बचा हुआ है, तो आपका जो वेटेड एवरेज रेट आएगा 294.87 होना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक। तो बिल्कुल सही है हम लोगों का कैलकुलेशंस। तो हम लोगों का जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आया वो हो जाएगा, ये वैल्यू का हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर दिस क्वेश्चन विल बी 19,46,112। तो आई होप आपको समझ आया हम लोग क्या करना चाहते हैं। वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी। इस तरीके से हम लोग वेटेड एवरेज रेट्स यूज करेंगे। इन वेटेड एवरेज रेट्स का यूज क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, जब जब हम लोग इशू करेंगे तो इन्हीं वेटेड एवरेज रेट्स को यूज किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखे। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होगा और वो भी वेटेड एवरेज रेट से करना होगा, जो कि ओपनिंग बैलेंस में होगा। और नॉर्मल लॉस का हम लोग ट्रीटमेंट सीखें कि नॉर्मल लॉस के केस में हम लोग उसका वैल्यूएशन नहीं करते हैं। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग रेट वाला कॉलम और अमाउंट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का यूनिट्स है उसको कम कर देते हैं, और वेटेड एवरेज रेट पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि हम लोग का अमाउंट सेम रह जाता है। सेम अमाउंट को रिड्यूस क्वांटिटी से जब डिवाइड करिएगा तो अल्टीमेटली जो रेट होगा वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका पूरा जो कैलकुलेशंस हैं वो हम लोग करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।